From the worthy chief guest of the moment for the general inspection session. नजर बुलंद, कंधे मजबूत, फख्र से चौड़ा सीना, उस पे खाकी वर्दी और खूबसूरत पगड़ी से सजे तथा पुलिस के नए नरेले जाबाज जवान। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वसूल खिलके रहेंगे जो फूल खिलने वाले हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। Now the chief guest of the moment is inspecting each contingent one by one. हम लोग एनजीओ की जगह श्री कविता गुप्ता जी और दूसरी की जगह डॉक्टर मोहम्मद अली। Stand up for the after. अब वो लम्हा आ गया जिसका मैं देश और आवाम के ताई रहूंगा। मैं कानून लागू करते वक्त बगैर किसी को या लालच के गैर जानबदारी और ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा करूंगा। हमेशा सच बोलूंगा और सच का साथ दूंगा। मैं अपने अमल और रब्त ज़ब्त से पुलिस फोर्स के वकार को दोबाला करूंगा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, ये कौम पे उठाई जा।
Here comes the Samakshakadam Madhya Seti still. Walking fast with confidence and grace, that's what we call true energy in motion. With heads held high and hearts full of pride, moving forward towards brighter tomorrow. Each step here reflects the hard work, dedication and courage of the trainee cadets. It is indeed a matter of great pride and honor for me to stand before this august gathering on the momentous occasion of the passing out parade of 453 recruit constables of Ladakh Police. Today marks the culmination of months of hard work, dedication and discipline. A total of 453 recruits reported at the training center to undergo basic recruit training. Among them, 209 are lady constables and 244 gentlemen. They have successfully completed 10 months and 11 days of rigorous basic recruit training, and today they are ready to join the force as a proud member of the Ladakh Police family. This success would not have been possible without the constant guidance, encouragement and support of our worthy Director General of Police, Ladakh. His vision, leadership and commitment to raising the standards of training have been instrumental in shaping these young men and women into disciplined and capable police personnel. During their training, the recruits underwent comprehensive instructions in the following areas. In outdoor, they had physical training including PPT and BPET, foot drill, weapon drill, field craft, map reading, obstacle course, etc. Besides outdoor training, the trainees had indoor training likewise in Bharatiya Nyaya Sanhita and other subjects, which will make them capable when their turn comes for any investigation of the cases in near future. Throughout their training, the recruits displayed outstanding performance, discipline and enthusiasm. Their hard work and perseverance have brought them to this proud day. I am pleased to share all 453 recruits who have successfully qualified in their rigorous training. Special recognition is due to those who excelled in various categories: all-round best cadet, the best outdoor training, the best indoor training, and the best marksman. Their excellence is a reflection of the spirit and determination that defines the Ladakh Police. Dear recruits, today you are passing out as full-fledged police personnel. From tomorrow, you will step into the field wearing the proud uniform of the Ladakh Police. Remember,
With this uniform comes great responsibility to serve the people with honesty, integrity, and compassion. Always uphold the motto of the police, service before self. Let discipline and duty be your guiding principle in every step of your career. In conclusion, I extend my heartiest congratulations and best wishes to all the passing out recruits. May you continue to work to make your families, your training center, and the Ladakh Police proud through your dedicated service to the nation. Jai Hind. लद्दाख पुलिस के लिए वो कई मायनों में सर ऐतिहासिक है। सबसे पहले सर 453 का जो बैच है, एक बड़ा बैच हमने ट्रेन करके आज हमारी पुलिस फोर्स में सर ये शामिल होने वाला है। मैं यहाँ बताता चलूँ सर कि लद्दाख यूटी बनने के बाद पुलिस की तरफ से 796 जो वैकेंसीज हैं वो भरी गई सर। और लद्दाख पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है सर लद्दाख यूटी में जिसने सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी रिक्रूटमेंट की सर। और ये कोई काम सर मुश्किल था, क्योंकि आजकल आप जानते हैं सर इसमें एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से जो हमने भर्ती करनी होती है उसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रहती कि कोई गड़बड़ हो। टेक्नोलॉजी का ज़माना है सर। मैं इससे पहले खुद भी 2 बार जो है जम्मू कश्मीर अर्सवाइल में जो है भर्ती चेयरमैन रह चुका हूँ सर। मुझे पता है कितना मुश्किल काम होता है। और यहाँ लद्दाख में भी मैं एज ए ADG सिक्योरिटी, जहाँ मेरे पास एक चेयरमैन मैं था भर्ती बोर्ड का, यहाँ पे बॉर्डर बटालियंस और वुमेन बटालियंस के लिए भर्ती के लिए यहाँ पे आया था सर। इस 496 की जो भर्ती है सर, मेरे से पहले एक बड़ा बैच जो था सर वो दिल्ली पुलिस की सर्विसेज उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में उनकी ट्रेनिंग हुई और उनको पुलिस फैमिली में शामिल किया गया। आज एक बहुत बड़ा बैच 453 का 453 का जो आज हमारी फैमिली में शामिल हो रहा है सर। मेरे आने के बाद हमने इमीडिएटली इसमें काम किया कि हम किसी तरीके से जल्दी से जल्दी पुलिस फोर्स को बढ़ाएं। और उस टाइम मैंने अपने जो मेरे सीनियर कलीग हैं DGP जम्मू कश्मीर, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप किसी तरीके से हमें एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो दिलाएं जहाँ पे हम इनको ट्रेनिंग कर सकें सर। और हमने लेथपुरा में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लेथपुरा पुलवामा में सर इनकी ट्रेनिंग करवाई। आज इनकी परफॉर्मेंस देख के सर मैं बहुत मुतमईन हूँ, बड़ा सेटिस्फाइड हूँ कि हमने एक अच्छा इंस्टीट्यूट चुना और इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिल है वो आउटस्टैंडिंग है सर। मैं 3 साल खुद भी डायरेक्टर पुलिस एकेडमी उधमपुर रहा हूँ, पर ये स्टैंडर्ड उससे किसी भी मामले में कम नहीं है, रादर उससे ज़्यादा ही है। तो इन सबको मैं बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ हमारे रिक्रूट्स ने ट्रेनिंग की है और इतना अच्छा आज अपना डिस्प्ले किया सर। इसके साथ ही साथ सर मैं यहाँ पे SP रह चुका हूँ और मैंने देखा है इवॉल्व होते हुए लद्दाख पुलिस को। 2001 से 3 तक जब मैं यहाँ पे था सर, पुलिस का रिसोर्सेज बड़े कम थे, हमारी फैमिली का साइज बहुत छोटा था, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमी थी सर। आज मैं देखता हूँ सर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछले 4 सालों में जो ग्रो हुआ है वो एक मिरेकल से कम नहीं है सर। हमारी जो पुलिस स्टेशंस हैं, हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, जो बाकी ऑफिसेज हैं वो विंटर फ्रेंडली हैं सर। यहाँ पे हम अपनी एफिशिएंसी जो है पूरे साल दिखा सकते हैं सर। हमारा स्टाफ अच्छी तरीके से रह सकता है, हमारे जो क्वार्टर्स हैं वो अच्छे बने हैं। इसी ट्रेनिंग सेंटर की बात करें सर, स्पॉन्सर में कोई 2 साल 4 महीने पहले जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मुझे याद है जब मैं यहाँ पे आया था सिर्फ धूल ही धूल थी सर, यहाँ पे कुछ नहीं था। होम डिपार्टमेंट की तरफ से इनकी हमेशा साथ रहा सर चीफ सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने हमें ये बैरक्स वगैरह जो है जो स्पेशल पैकेज के तहत सर हमने बैरक बनाई और उसके बाद में बिल्डिंग्स बनाई सर। और बाकी जो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप पे काम किया सर, अपने रिक्रूट्स ने मिल के इस ज़मीन की लेवलिंग करनी और एक में मैकडम करके आज इतना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है सर। और इसका वाकई ही एक अच्छा ट्रेनिंग स्कूल मुझे लगता है इसके पूरे भारत में सबसे हाईएस्ट आल्टीट्यूड पे सबसे अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर मैं इसको कहूँगा सर वो ये है। इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब का, क्योंकि अभी ये सैंक्शन नहीं है हमारे पास स्पॉन्सर में, पर हमने ऑलरेडी एक प्रपोजल मूव किया है जिससे कि इसको सैंक्शन मिलेगी सर। और ऑलरेडी सर इसमें हमने 2 इन सर्विस जो ट्रेनिंग जो है वो उनको हम निकाल चुके हैं सर यहाँ से ट्रेनिंग करके।
और आज इतना बड़ा हमने जो ट्रेनिंग यहाँ पे पासिंग आउट की है। लॉजिकली सर जो पासिंग आउट होती है उसी इंस्टीट्यूट में होती है जहाँ पे इनकी बेसिक ट्रेनिंग हो, पर क्योंकि मैं चाहता था कि लद्दाख का एक स्पेशल ओकेजन होगा, हम डिस्प्ले करना चाहते हैं हमारे जो बच्चे हैं जो रिक्रूट्स हैं जब यहाँ पे ट्रेनिंग करके आए हैं, इनकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, कम्युनिटी लेवल पे लोग यहाँ पे लद्दाख के जो सिविल सोसाइटी वो देखे और ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले सर इनकी फैमिलीज़ को एक हिस्टोरिक डे में इनके साथ जो है खुशियाँ बांटने का। इसलिए हमने ये शिफ्ट किया पासिंग आउट परेड रिक्वेस्ट करके DGP JNK से, और हमने यहाँ पे उनको कुछ दिनों में ट्रेन करके, और आज आप देख रहे हैं सर इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने जो पासिंग आउट अपनी जो परेड की है। मैं हाईली कमेंडेशन देना चाहता हूँ इन सभी को, सभी ट्रेनर्स को, अपने प्रिंसिपल जो अल्ताफ़ साहब हैं उनको, और इन सभी को, सभी रिक्रूट्स को जिन्होंने बड़ी मेहनत की और इस किस्म का जो है आज आपने मुजाहरा किया। सर तो स्पॉन्सर की मैं बात कर रहा हूँ सर, अभी ये इंस्टीट्यूट सर ये सिर्फ पुलिस के काम नहीं आएगा सर, मेरे हिसाब से ये जैसे उधमपुर में हमने देखा हर किस्म की जो एक UT लेवल का सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये बनेगा सर। इसमें हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को लगा सकते हैं सर, इसमें जेल वार्डन्स की लिए ट्रेनिंग करवा सकते हैं, हमने मुंसिफ्स की ट्रेनिंग हमने करवा सकते हैं सर, यहाँ पे फायर सर्विस की ट्रेनिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स की सर इन सर्विस ट्रेनिंग अगर हम करवाना चाहे, आज हमारे पास एक लिंपिंग स्टार्ट जिसको बोलते हैं, एक छोटा सा हमने एक इंस्टीट्यूशन ऐसे क्रिएट किया है जिसमें अभी बड़ी गुंजाइश है, इसको बड़ा करना है सर। एक ऑलरेडी हमने प्रपोजल चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा है, इसमें 200 कनाल ज़मीन हमने इसमें मांगी है, जिसमें हम इसके लिए बेटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्रिएट करें सर। आप जानते हैं सर लद्दाख एक यूनिक जगह है और यहाँ की स्पोर्ट्स भी यूनिक है। मैं चाहता हूँ हम अपने यहाँ की विंटर स्पोर्ट्स का एक सेंटर इसके साथ ही बनाएं, जिसमें हमारे रिक्रूट्स भी ट्रेनिंग कर सकें, साथ ही साथ यहाँ के यूथ, यहाँ के बच्चों को एक मौका मिले। हम यहाँ पे घुड़सवारी का करवा सकते हैं, हम इनको आइस स्केटिंग के ऊपर करवा सकते हैं, हम इनको तीर अंदाजी जो यहाँ का ट्रेडिशनल सपोर्ट है सर, उसको हम अगर हम मिला कर सके, एक ही साथ उसकी मेंटेनेंस पुलिस की तरफ से हो जाएगी। इसमें हमारे यूथ को भी एक मौका मिलेगा इस किस्म की स्पोर्ट्स में आगे आने का। इसके साथ ही साथ सर मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, पर्टिकुलरली हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला हो और आप हम सबको आशीर्वाद दिया। थैंक यू सो मच। लद्दाख पुलिस की पहली पासिंग आउट परेड के इस ऐतिहासिक दिन पर आप सभी को संबोधित करते हुए मेरे लिए बहुत गर्व हो रहा है और खुशी का क्षण है। ये दिन देश के सबसे युवा पुलिसकर्मी बल के रूप में लद्दाख पुलिस की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर साबित हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निर्माण के बाद शुरुआती वर्षों में हमारे पुलिस बल ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। बुनियादी ढांचे, पुलिस स्टेशन और चौकियां जो सार्वजनिक सुरक्षा के प्रतीक थे, को केंद्र शासित प्रदेश के मानकों के रूप में पूरा करने के लिए तत्काल आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी। हमारे पास प्रशिक्षण, आत्मनिर्भरता की कमी थी। हमारे नए पुलिसकर्मियों को बाहर भेजते थे, जो हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सुरक्षा और प्रशासनिक मांगों को पूरा करने के लिए तेज़ी से एक मजबूत मानव संसाधन ढांचा तैयार करना ज़रूरी था। इन्हीं चुनौतियों से लद्दाख पुलिस के संघर्षशीलता और दृढ़ संकल्प बढ़ा गया। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे प्रशासन ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया। सिर्फ सामना ही नहीं, बल्कि अनेक परिवर्तनकारी विकास भी उन्होंने लाए हैं। हमने पूरे लद्दाख के पुलिस स्टेशनों और चौकियों के नवीकरण और उन्नयन के लिए एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि हमारे अधिकारी गरिमा और दक्षता के साथ काम कर पाए। इसके अलावा हमारी पर्यटक अर्थव्यवस्था की मांगों के लिए हमारे प्रमुख पर्यटन स्थलों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया है, जिससे पुलिस की दृश्यता और सार्वजनिक सहायता से काफ़ी वृद्धि हुई है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पुलिस बल की आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, आवास, कल्याण और डिजिटल उन्नयन के माध्यम से मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महिलाओं की ये भागीदारी बढ़ाने, संचार प्रणालियों को सुधार
और पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कल्याण सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज यहाँ स्टोंगसर में यहाँ लद्दाख पुलिस के भविष्य के आत्मनिर्भरता की नींव रखी जा रही है। इस प्रशिक्षण केंद्र पर वर्ष 2022 में काम शुरू किया गया था और ये सब कड़ी मेहनत के बाद ही ये परिणाम ये है कि आज हम यहाँ लद्दाख पुलिस की पहली पासिंग आउट परेड आयोजित कर पा रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार से किया जाएगा और हमारी लद्दाख की धरती पर ही हमारे नए पुलिसकर्मियों को लद्दाख के मुद्दों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ये प्रशिक्षण संस्थान केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अन्य विभागों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। लद्दाख के युवाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम सब सुनिश्चित कर रहे हैं कि लद्दाख के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और आज 453 जो भर्तियां हैं आज जो पास आउट हो रही हैं, ये हमारे प्रयासों का प्रमाण है। इतना ही नहीं, सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी, जिससे लद्दाख के युवाओं के लिए रोजगार के और रास्ते खुलेंगे। मैं सभी नए कांस्टेबलों को हृदय से बधाई देता हूं और जब आप लद्दाख पुलिस में कदम रख रहे हैं तो आप सभी को ये याद रखना चाहिए कि आप जो वर्दी पहनते हैं ये विश्वास, त्याग, सम्मान और तपस्या का प्रतीक है। ये लोगों की अपेक्षाओं और हमारे संविधान के निहित मूल्यों को वहन करता है। आप सभी को ये भी याद रखना चाहिए कि कठिन क्षणों में साहस के साथ दया का भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक नागरिक के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें और ये भी याद रखें कि आपका कर्तव्य न केवल कानून को लागू करना है, बल्कि जिन लोगों को की आप सेवा करते हैं उनके बीच भरोसा और विश्वास पैदा करना भी है। साथ ही ये बैच खास इसलिए है क्योंकि 453 जो भर्तियों में से 209 हमारी महिला कांस्टेबल हैं, हमारी छोटी बेटियां हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक शक्तिशाली क्रांति है। ये लैंगिक समानता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है और हमारे पुलिस बल के अधिक प्रतिनिधिपूर्ण, दयालु और प्रभावी बनाता है। इस गौरवपूर्ण दिन के अवसर पर आइए हम लद्दाख पुलिस के उन बहादुर अधिकारियों, जवानों को भी श्रद्धा के साथ याद करें जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनका साहस हम सभी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आप सभी को उनकी विरासत का सम्मान, जवाबदेही और कर्तव्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार फिर मैं प्रत्येक पासिंग आउट कांस्टेबल और उनके परिवारों को अपनी गहरी बधाई देता हूं, जिन्होंने इस यात्रा के दौरान उनका समर्थन किया है। अंत में मेरी यही कामना है, आप सभी लद्दाख पुलिस को हमारे केंद्र शासित प्रदेश के लिए गौरव बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय लद्दाख। पुरस्कार विजेता अजय साहब देशचंद विजेता था। पुरस्कार विजेता सज्जा जय साहब। विजेताओं का जोरदार तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई करें। Afterward, I request the best Sonam Youngton please come forward and receive your token of appreciation. होनी चाहिए, तालियों की गूंज कम है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे मेहमानों से कि हमारे पुरस्कार विजेताओं के एनकरेजमेंट के लिए जोर से ताली बजाएं। Now it's the time to announce the all-round best. So I would request Sonam Youngton for the all-round best of BRTC Batch 2025. Second and third position in
differently. The second best marksman Chetan Angus, third best marksman Muhammad Ali. तिलक हमारे फांसी और परेड की आखिरी कार्रवाई है जिसमें कैडेट सीरी डांस चलते हुए अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आज के मेहमान अजीज, तमाम निगरान मेहमान सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे इस पासिंग और परेड की रौनक को दोबारा किया। उन्होंने अपने लहू से बुझाई थी इस मिट्टी की प्यास, उन्हें जिंदगी से ज़्यादा मौत आई थी रात। न जाने कितनों की सांसें बंद हो गई, तब जाकर हमने ली थी ये आज़ादी की सांस। Tilak is the last stage of passing of parade. Today is not just a ceremony, it's a celebration of courage, commitment and discipline. On behalf of the entire Department of Ladakh Police, I extend my heartfelt gratitude to you all for joining us on this proud and historic day of the passing out parade of the BRCC batch of Ladakh Police. To our distinguished chief guests and other dignitaries, your presence adds honor and pride to this occasion. Your inspiring words have reignited our spirit to serve our motherland with ever greater zeal and devotion. To our respected instructor, your guidance, discipline and patience have shaped us into the men and women of steel. Every lesson, every command, every drill has prepared us for the duty that lies ahead. To our families, your support, your prayer. लद्दाख पुलिस की तरफ से पहली पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 453 हमारे जो नए पुलिस में भर्ती की गई है, उसमें लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। तो ये लद्दाख पुलिस के लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है और आने वाले समय में इसी प्रकार से लद्दाख पुलिस को इनके आने के साथ एक मजबूती तो मिली है, लेकिन जिस प्रकार से एक एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से आने वाले समय में ये जो हमारा एक आयोजन यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर अलग और तरह की भी ट्रेनिंग्स यहाँ पर हो सकेंगी, ऐसा मुझे लगता है। और कुल मिलाकर के आने वाले समय में और फील्ड्स में भी, पुलिस के अलावा भी दूसरे फील्ड्स में भी नौजवानों की भर्ती का काम शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा जो बताया गया है कि अब सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी आने वाले समय में होगी। और कुल मिलाकर के लद्दाख आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में लद्दाख आगे बढ़े, इस प्रकार का ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास है। सर, महिलाओं का संख्या बहुत बड़ी है सर इस कंटिंजेंट में, तो क्या कहेंगे सर कि ये महिला शक्तिकरण का? बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण की तरफ ये एक कदम है। तो मुझे लगता है कि मैं जब बाज़ार से गुजरता हूँ आज भी, तो वहाँ पर जो अधिकांश जो ट्रैफिक पुलिस में हैं वो हमारी महिलाएं नज़र आती है। अच्छा लगता है कि काफ़ी एक्टिव और अलर्ट वो रहती हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है भारत सरकार की ओर से। तो सर, जिस तरह से इस ट्रेनिंग सेंटर को वर्ल्ड हाईएस्ट ट्रेनिंग सेंटर की दर्जा देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक प्रपोजल रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल, जल्द ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से लद्दाख को हर क्षेत्र में सपोर्ट मिलता है। मुझे लगता है इसके लिए भी जो पहल होगी वो यहाँ लद्दाख के लिए काम आएगी।